So today May 17 is celebrated as World Hypertension Day. So I want to tell you something about this day, that why this day, World Hypertension Day, is observed every year in world. Okay, it is only to you can say create awareness among the people, to guide people about the deadly disease that we all are living with, and that is hypertension. You have heard so many times this term hypertension. So if I ask you that what do you mean by the term hypertension, or if you are not able to tell me hypertension, then can you say something about blood pressure? Yes, bete. Yes, ma'am. Okay, bete, please speak. Blood pressure. Can you define blood pressure? Any one of you can speak. No idea, bete? And the pressure that the Hanji. pressure that the blood exerts against the wall of the arteries is called blood pressure. Yes, bete. Chirag, it is absolutely correct. Okay, bete, blood pressure you have learned in class 10th also, that it is actually the force that is exerted by the blood on the walls of the arteries. You know that your blood passes through blood vessels, and special among these are the arteries. We generally collect blood from your heart and distributed it to different parts of your heart. So you also know that blood pressure is of two types. Okay, depending upon the contraction and relaxation of the ventricles. So it is known as systolic blood pressure and diastolic blood pressure. तो आपको पता है कि systolic blood pressure, it is generally created because of ventricular contraction. Because you know that your heart consists of 4 type of chambers. Left and right auricles are there, then left and right ventricles are there. Okay, bete? So right portion of your heart always receive deoxygenated blood, and left portion always receive oxygenated blood. So what I want to say that from the auricles, the blood finally enters into the ventricles. And when the ventricles, they receive blood, then after that what happens? The ventricular contraction takes place. Okay, so depending upon at what side that ventricle is present. अगर लेफ्ट साइड वाला वेंट्रिकल है तो आपको पता है कि उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एंड इट हैज टू पोर दैट ब्लड इनटू द आयोटा. एंड अगर राइट साइड वाला वेंट्रिकल है तो इट हैज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड has to be poured into the pulmonary artery, so that it must be sent to the lungs for oxygenation. Okay, bete? So first term here I am using a systolic blood pressure. So systolic blood pressure is actually the pressure that creates when the ventricles they contract. Okay, bete? And you also know the value also. The value for systolic blood pressure for a healthy person is 120 mm of Hg. And for a diastolic blood pressure, what do you mean diastolic blood pressure? So diastolic blood pressure is actually that pressure when the ventricles, they have poured their blood into the pulmonary artery, or you can say into the aorta. Then after relaxation, there is a decrease in the pressure in the ventricles, and that pressure is known as the diastolic blood pressure. तो जो ventricular contraction से होता है वो systolic है, जो वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन से होता है वो डायस्टोलिक है. और वैल्यू क्या है इसकी? तो सिस्टोलिक की हमेशा 120 mm ऑफ Hg होती है, एंड डायस्टोलिक की हमेशा कितनी रहेगी? 80 mm ऑफ Hg होती है. ओके बेटे, तो दिस इज फॉर द हेल्दी पर्सन. बट वो कहता है कि इफ सम पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कार्डियक डिसऑर्डर्स, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट के केसेस हो सकते हैं, कार्डियक फेलियर के केसेस हो सकते हैं, हार्ट अटैक के केसेस हो सकती हैं. तो उस केस में what we observe that this value which is 120 by 80 mm of Hg, the value it varies from this value. इस वैल्यू से वो वैल्यू वेरी करने लग जाती है. तो हार्ट बीट जो है उसको जब हम नोट करते हैं तो उस पर्सन की कंटिन्यूअसली स्टेथोस्कोप पे जो वैल्यू है वो 140 by 90 से स्टार्ट होकर उससे अब तक कितनी भी वैल्यू हो सकती है. ठीक है, कई बार जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू है वो 200 तक चले जाती है, 190 तक चले जाती है. तो दैट कैन बी कंसीडर्ड एज अ केस ऑफ सीवियर कार्डियक डिसऑर्डर्स.
उसी तरह से 80 mm ऑफ Hg होनी चाहिए थी बिलो वैल्यू, और वो वैल्यू जो है वो 90 या फिर 100 तक पहुंच जाती है, तो ये केसेस जो है वो कार्डियक डिसऑर्डर्स के होती हैं। तो उसके बाद देखिए सिम्टम्स हमें क्या ऑब्जर्व किए जाते हैं हाई ब्लड प्रेशर के। तो मोस्ट ऑफ द पर्सन इफ दे आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, ठीक है, स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं में रहता है पर्सन, हमेशा एंजाइटी फियर के अंदर जीता है, तो उसमें ब्लड प्रेशर जो है वो कॉमन हो जाता है। ठीक है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, ब्रीथलेसनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, पर्सन इज नॉट एबल टू ब्रीथ। ठीक है, हैमरेज हो जाता है उसको, इट मे बी एनी काइंड ऑफ हैमरेज। ठीक है बेटे, हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, सीवियर हेडेक इज देयर। देन हार्ट प्रॉब्लम्स तो रहेंगी रहेंगी क्योंकि हार्ट से रिलेटेड है। And sometimes when the blood pressure rises, then there is a severe bleeding in the nose also. ठीक है, नोज में से हैवी ब्लीडिंग होने लग जाती है। पाल्पिटेशन मींस हार्ट बीट जो है ना पर्सन की, वो एबनॉर्मल होती है, बीच में से जो हार्ट बीट है उसकी वैल्यू स्किप होने लग जाती है। ठीक है, तो इस तरह के सिम्टम्स जो है वो हाई ब्लड प्रेशर का जो पेशेंट है वो फेस करता है। So World Hypertension Day has been established to highlight the preventable strokes, ठीक है, heart and kidney diseases that are caused because of this blood pressure. So we should guide people, we should create awareness among public that how can we prevent such a dreadful disease, how can we detect it at an early stages and we go for suitable diagnosis or treatment. So each year May 17th is designated as the World Hypertension Day. Okay, but so hypertension is a global epidemic nowadays, and as estimated 1 billion people all over the world, they are suffering from this hypertension disease, and the cases they keeps on increasing to 1.56 billion by 2025. This probability is there. ठीक है, तो हर साल कहते हैं कि 7.1 मिलियन लोग जो इनकी डेथ जो है वो हाइपरटेंशन की वजह से होती है। ओके स्टूडेंट्स, then I want to tell you that what kind of common symptoms a patient generally observe जब उसको ऐसा लगता है कि उसको हार्ट अटैक जो है उसकी फीलिंग आती है या स्ट्रोक की फीलिंग आती है। तो अगर हार्ट अटैक जो है किसी पर्सन जो है हार्ट अटैक जो है उससे सफर करने वाला है, तो उससे पहले उसको कैसे सिम्टम नजर आते हैं। ठीक है बेटे, पेन और डिस्कम्फर्ट फील करता है इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, देन पेन और डिस्कम्फर्ट इन द आर्म्स ऑल्सो। ठीक है, लेफ्ट शोल्डर पे, क्योंकि आपका जो हार्ट है ना वो लेफ्ट पोजीशन पे होता है, जनरली राइट भी होते हैं, वो एक्सेप्शनल केसेस हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड की एल्बो में, जॉ में, बैक में जो है वो पेन और डिस्कम्फर्ट फील करेगा पर्सन। ठीक है, शॉर्टनेस रहेगी ब्रीथ की, सांस अच्छे से नहीं आएगा, वॉमिटिंग हो सकती है पर्सन को, फीलिंग लाइट हेडेड और फेंट। ठीक है, उसको ऐसे लगेगा कि जैसे अनकॉन्शियस सा हो रहा है, फेंट हो रहा है वो। एंड द पर्सन इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम कोल्ड स्वेट। ठीक है, जिसे पंजाबी में हम कहते हैं कच्ची तरेलियां आना, तो दैट इज कोल्ड स्वेट, बिकमिंग पेल, तो पर्सन जो है उसका पीला पड़ जाता है चेहरा। उसके बाद देखो अगर स्ट्रोक की प्रॉब्लम है तो उस केस में वीकनेस आती है, एकदम से वीकनेस उसको फील होती है, नंबनेस ऑफ द फेस, आर्म्स एज वेल एज लंग on that side where the heart is located. ठीक है, person is very much confused, he is feeling difficulty in speaking and he is not able to understand the speech of others. Okay, he is also feeling difficulty in seeing through both of his or her eyes. ठीक है, person is not able to walk properly, a feeling of dizziness is there. ठीक है, लॉस ऑफ बैलेंस, अच्छे से खड़ा नहीं हो पाता है, अपनी एक्टिविटीज नहीं कर पाता है, कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता। इसके अलावा देखो सीवियर हेडेक की प्रॉब्लम रहेगी उस समय, और पता नहीं लगेगा कि सिर दर्द क्यों हो रहा है, अचानक से बहुत तेज सिर दर्द होना है, फेंट हो सकता है, अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन हो सकती है। देन कहता है व्हाट आर द स्मॉल स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो टू प्रिवेंट दिस हाई ब्लड प्रेशर। सो व्हेनेवर वी हैव टेक अवर मील वी मस्ट फॉलो दैट कि हमारी जो डाइट है ना उसमें सॉल्ट का कंटेंट कम होना चाहिए, बहुत ज्यादा सॉल्ट नहीं हम डाल के खाएंगे अपने खाने में। तो डिक्रीज सोडियम कंटेंट इन योर डाइट। ठीक है, somebody is स्मोकिंग एवरी डे, तो उसको गाइड करना है कि ही शुड क्विट स्मोकिंग। ठीक है, अल्कोहल अगर एडिक्ट है तो अल्कोहल जो है उसका जो है इंटेक कम करे पर्सन। एंड इसके अलावा देखो बेटे, स्विच टू अ हेल्थियर डाइट। ठीक है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एनी काइंड ऑफ जंक फूड वी शुड हैव अ प्रॉपर बैलेंस्ड काइंड ऑफ डाइट। उसके अलावा देखो वी शुड डू फिजिकल एक्सरसाइज
So person should be physically active. As you know that nowadays we are sitting at our home, so we are nothing to do more. So we should do physical exercise so that proper blood circulation is there in your body. Okay, and we should also take enough sleep every day. ठीक है, रात को बहुत टाइम तक जागना नहीं है. सुबह भी हमें जो है, अगर आपको नून टाइम भी फील होता है कि we should sleep, so you take a sleep for 1 or 2 hours. That is very much beneficial to overcome from such kind of disorders. So here I have again written the tips how you can reduce your stress, because stress is the major cause of blood pressure. So बेटा get enough sleep every day. Then you should follow relaxation techniques. जैसे meditation करना है. अगर आपको कोई stress है किसी चीज पर, जैसे स्टूडेंट को क्या stress हो सकती है, ठीक है, स्टडी को लेके हो सकती है उसको, या फिर एग्जाम टाइम है तो स्टूडेंट इज फीलिंग स्ट्रेस. सो इन दैट केस द पर्सन और स्टूडेंट शुड मेडिटेट. तो उससे हमें थोड़ा सा अच्छा फील होता है. डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज शुड बी देयर. प्राणायाम करते हैं ना, योगा करना है, तो ये सारी अच्छी हमारे लिए हो सकती है. ठीक है बेटे. स्ट्रेंथन योर सोशल नेटवर्क. यू शुड मीट मोर एंड मोर पीपल. अगर आप लोगों से मिलेंगे या कहीं आप विजिट करेंगे किसी जगह पे दूसरे लोगों से मिलेंगे, तो यू आर एबल टू रिलीज योर स्ट्रेस. You can share that your views with others. तो उससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है. ठीक है. टाइम मैनेजमेंट स्किल शुड बी फॉलोड. तो अगर आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करके रखते हैं अपनी लाइफ में, उस केस में आपको कोई स्ट्रेस या टेंशन नहीं रहेगी. आपके सारे काम टाइम पे होंगे. ओके बेटे. इसके अलावा देखो, रिजॉल्व स्ट्रेसफुल सिचुएशंस. तो जो भी आपको कोई स्ट्रेस है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं, टीचर्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ. तो इस तरह से यू कैन इजिली रिलीव दोस स्ट्रेसफुल कंडीशंस. ठीक है. नर्चर योरसेल्फ. तो इवनिंग वॉक के लिए जाइए, मॉर्निंग वॉक के लिए जाइए. यू हैव टू विजिट सम ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस. तो वो आपको हेल्प करते हैं. ओके. तो इस तरह से वो कहते हैं कि कोई भी आपकी एंजाइटी है, कोई स्ट्रेस है, अपने फ्रेंड के साथ, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, यू कैन इजिली शेयर. इन दिस वे यू कैन रिड्यूस योर स्ट्रेस and you can very easily able to overcome this dreadful disease, that is blood pressure. So here I have written some points. So hypertension prevention tips है ये. तो healthy diet तो लेनी ही लेनी है. साथ में अगर हम जो है एक्स्ट्रा वेट गेन कर गए हैं, ठीक है, तो एक्स्ट्रा वेट लूज करने के लिए we have to do exercises. Then lower the content of sodium in your diet, that you must follow. ठीक बेटे. कंट्रोल योर अल्कोहल इनटेक. देन स्मोकिंग, टोबैको यूज जो है उसको हमने क्विट करना है. ओके बेटे. टाइम टू टाइम फुल बॉडी चेकअप करवाते रहना है. तो अभी तो यू कम अंडर द, यू कैन से adolescent, but when you pass the age of 30 years, 35 years, then you must have to go for a full body checkup so that you should not suffer from such kind of diseases. Okay students. So I am very much hopeful कि सारे points आपको clear होंगे. You should also share these points with your family members or elders who are suffering from this disease. I will send you the PPT after the class too. Now we are proceeding with our own topic. Yes, students, our topic is, yesterday we have done about herbarium and we are doing the taxonomical aids. Okay, bete. So taxonomical aids में I have explained you in chapter The Living World that these taxonomical aids are actually the special type of aids which are very much helpful in the process of classification. So one of them are the herbariums. तो मैंने आपको बताया था कि herbariums can be called as the bigger files, where we generally mount these plant specimens. We are not only mounting these plant specimens, whereas we also write the proper, you can say, नेमिंग ऑफ दोस प्लांट स्पेसिमेंस इन अ साइंटिफिक वे. ठीक है. आप उसके प्रॉपर तरीके से, जैसे हम टेक्सोनॉमी के अंदर नेमिंग करते हैं प्लांट स्पेसिमेंस की, वो आप करते हो. उसमें आप नेम ऑफ द कलेक्टर यू हैव टू राइट, देन डेट यू हैव टू मेंशन दैट ऑन व्हाट डेट यू हैव कलेक्टेड दैट स्पेसिमेन, एंड उसके बाद जो है आप उसके हैबिटेट के बारे में लिखते हो. देन आप उसका नेम जो है वो लिखते हो. मैंने आपको बताया था यू फर्स्ट यू हैव टू मेंशन द कॉमन नेम, but later on when you go through the manuals, what are these manuals? These manuals are the bigger books of botany where some of the photographs related to that specimen is there, and the technical name or scientific names are also mentioned along with that photographs.
So go through those manuals when you visit your laboratory, and with the help of your biology teacher, you are able to find out the name and you write down that technical name on the particular specimen. ठीक है, how you mount those specimen that I have already explained, कि आपने न्यूज़पेपर्स के अंदर पहले तो कलेक्टेड स्पेसिमेन जो उसको रखना है, एवरी डे यू हैव टू चेंज द न्यूज़पेपर, अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो स्पेसिमेन में फंगस लग जाएगी. And when you see that the total drying up of the specimen is there, then what you have to do, you have to mount that specimen on the piece of paper of that herbarium file with the help of a you can say sellotape आप use कर सकते हो, या you can use any of the adhesive, it may be Fevicol or gum, whatever. इस तरह से हमने उसको स्पेसिमेन को माउंट कर लेना और उससे रिलेटेड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है उसको आपने लिखना है. तो ऐसे हमने thousands of specimen we can easily paste on these sheets, and they are very much beneficial for the students of botany who want to study the flora of that particular region. Suppose you are doing some research work and you want to visit Phagwara and you want to know each and every plant that is growing in that area. So one method is that you go for a field trip and then you have to find out that what plants they are growing there. So ये एक ऐसा टास्क हो सकता है जिसमें आप बहुत ज्यादा टायर्ड हो सकते हैं, और अगर आपके स्कूल के अंदर एक हर्बेरियम पहले से ही प्रेजेंट है जिसमें आपको एक पूरी की पूरा लेआउट मिल जाता है कि so and so plants they comes under the flora of the Phagwara, then you take the help from that herbarium, और उसके बेसिस पे अगर आप फ्लोरा को फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे तो फील्ड ट्रिप जो है तो आपका शॉर्ट हो जाएगा और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा. तो ऐसे बहुत सारे जो हैं स्पेसिमेंस जो हैं उनको माउंट करके हर्बेरियम्स तैयार किए गए हैं. मैंने आपको बताया था कि अलग अलग तरह के हर्बेरियम्स जो हैं कंट्री के अलग अलग पार्ट्स के अंदर जो हैं रखे हुए हैं, तो उसमें से देहरादून के अंदर CSIR, ठीक है, एक बहुत ही बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ पे कि बिगर हर्बेरियम्स जो हैं वो रखे गए हैं. ठीक है, इसके अलावा इंडिया में लखनऊ के अंदर भी इस तरह के हर्बेरियम्स जो हैं वो रखे गए हैं. ठीक बेटे, आपको एक चीज और बताई थी कि when you prepare this herbarium file, then these herbarium soils are later maintained in the almirahs, and when you know that we have mounted these specimens on the piece of paper, and both of the plant specimen as well as the piece of paper they are organic in nature. ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक चीज है, कार्बन से बनी हुई चीज है, तो उसके ऊपर फंगस लग सकती है या कोई भी इंसेक्ट्स जो है उसको खराब कर सकते हैं. तो इन दैट सिचुएशन when you placed these herbarium files in the respective almirahs, then one thing you must have to taken in your mind that spraying should be done every you can say an interval of 13 to 14 days. ठीक है, जब 13 से 14 दिन हो गए हैं तो जिन अलमीरास में आपने इस तरह की हर्बेरियम फाइल्स रखी हुई हैं वहां पर जो है आपने टाइम टू टाइम स्प्रे भी करना है इंसेक्टिसाइड्स का, सो दैट कि आपके स्पेसिमेन जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स के लिए बने रहें और ये स्टॉक आपका खराब ना हो. ओके बेटे, प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट वन. So these are the botanical gardens, as the name itself indicate. What are botanical gardens? So as you know that in case of herbarium, we generally take the specimen, plant specimen from the field. We collected specimen and later on we mount it on the herbarium sheet. So that is one method of preservation of the specimen for the purpose of classification. But the concept of botanical garden is a beautiful one. ठीक है, here we are not going to collect any kind of specimen. We have selected one big piece of land, ठीक है, which may be of many hectares. तो हम क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा हेक्टेयर लैंड जो है उसको ऑक्युपाई कर लेते हैं और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, बहुत सारी प्लांट्स की स्पीशीज जो है उनको ग्रो करते हैं. ठीक है बेटे, तो अगर आप पंजाब की बात करेंगे तो देयर आर सम ऑफ द प्लांट्स व्हिच आर comes under the common flora of the Punjab. ठीक है, but there are some of the trees, some of the plants which are not growing in Punjab, they are growing in Himachal और जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, अब हर बार उन प्लांट्स को देखने के लिए, उनके कैरेक्टर्स को स्टडी करने के लिए इट इज नॉट पॉसिबल टू विजिट जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल एवरी टाइम. ठीक, क्योंकि काफी एक्सपेंसिव टूर हो सकता है आपके लिए. तो उस केस में वो कहते हैं कि हमने अलग अलग जो इंडिया की स्पीशीज है ना, जो अलग अलग रीजन्स में ग्रो करती है, वेदर दे आर ग्रोइंग इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया और दे आर ग्रोइंग इन द सदर्न पार्ट, ईस्टर्न में है, वेस्टर्न में है. तो हमने क्या किया, एक बड़ा हेक्टेयर लैंड जो है सेलेक्ट कर लिया और उसमें
उनके सभी के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स जो है उनको ग्रो किया, ठीक है बेटे। तो दिस इज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट ऑफ बॉटनी because he or she is able to see those plants by his or her own eyes, ठीक। और इसके साथ सिर्फ इतना ही नहीं किया होता, इस तरह के बोटेनिकल गार्डन्स जो हैं, जो बिगर पार्क्स हैं, वो कंट्री में अलग अलग जगह पे नहीं होते। So sometime when you take admission in colleges and universities, so these colleges and universities, they have their own botanical gardens for the students of botany who are doing MSc in botany. Okay, students. So these gardens, they are generally, in these garden, the plant species, they are grown for the purpose of identification as well as for classification. Each and every plant is classified in a proper way, ठीक है, एंड द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट प्लांट इज आल्सो मेंशन। तो कहते हैं कि कुछ प्लांट काफी छोटे हो सकते हैं, तो उसको हमने पॉट्स की फॉर्म में ग्रो किया हुआ है, और कुछ बहुत बड़े बड़े ट्रीज हैं, तो उसको हमने जो है लैंड पे, सॉइल पे लगाया हुआ है, और सिर्फ उनको लगाया ही नहीं है, उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है ना, उसको भी किसी वुडन बोर्ड के ऊपर लिख कर हमने उस प्लांट के साथ में जो है लगाया हुआ है पैम्फलेट की फॉर्म में। So whenever the students, the teachers, they visit, or the common man, they visit these plants, they are able to find out that what is the name, scientific name of the plant, in what kind of habitat this plant is generally find, ठीक है, कहाँ पे हमें मिलता है, और उससे रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमने उस पैम्फलेट के ऊपर लगाकर तैयार किए होते हैं। ये पैम्फलेट जो इनको माउंट किया जाता है आयरन बोर्ड्स पर, ठीक है, जिसका एक हैंडल होता है, उसको हम सॉइल के अंदर लगा लेते हैं, and through this we are able to study the plant species. So all over the world as well as in our nation too, we have so many famous botanical gardens. So one of the bigger garden is of world is found in England, and it is popularly known as the Kew Botanical Garden, ठीक है बेटे। उसी तरह से इंडिया के अंदर इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो है वो हावड़ा के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, हावड़ा ब्रिज के बारे में आपने सुना हुआ है। इसके अलावा नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इट इज फाउंड इन लखनऊ, वहां पे बोटेनिकल गार्डन भी है और हर्बेरियम भी है। इस तरह से ये बोटेनिकल गार्डन जो है बहुत ही ब्यूटीफुली मेंटेन किया जाता है, जो भी इसके यहाँ पे पर्सन्स जो वर्क करते हैं उनके साथ, और लोग जो है ये बोटेनिकल गार्डन्स जो है, दिस इज नॉट ओनली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज बाय स्टूडेंट्स ओनली, even the common people, they generally visit, and those people who have a sense of aesthetic sense as they generally want to visit such beautiful places. तो इससे क्या होता है ना कि सिर्फ लोग इन प्लेसेस को विजिट नहीं करते, बल्कि जो इकोनॉमी है उसको भी काफी बेनिफिट होता है। तो कुछ टिकट्स जो हैं वो लगाई जाती हैं, और लोग जब भी विजिट करने जाते हैं तो उससे जो भी पैसे इकट्ठे होते हैं वो कंट्री में यूज किए जाते हैं फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ टूरिज्म एक्सेट्रा। Okay, but another thing is museum. You are well aware of museum because you have seen your biology lab so many times, and there you find that so many specimens they are lying over there. So what are these museums? These museums, they may be range from a very smaller to a bigger one. ठीक है, स्कूल के अंदर आपको स्मॉलर म्यूजियम्स नजर आते हैं, कॉलेज में जाएंगे तो थोड़े से उससे बड़े रहते हैं, एंड समटाइम्स व्हेन यू विजिट यूनिवर्सिटी म्यूजियम तो वो उससे भी बड़े होते हैं, और कंट्री लेवल पे हैं तो वो और भी ज्यादा बड़े होते हैं। So what these museums they generally contains, they are generally set up in the educational institutes, ठीक है, colleges में, schools के अंदर, and they are actually having the collections of preserved plants, animals, insect, bird specimens. Okay, beta. So what is the criteria to preserve these specimens of plants and animals? So whenever you visit your bio lab, what you see that we put some animals, preserved animals in a solution. तो बॉटल्स के अंदर जो हमने सॉल्यूशन फिल की होती है ना, वो फॉर्मलिन होती है, जिसको हम फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं, और उसे हम ज्यादा समय तक प्लांट और एनिमल स्पेसिमेंट्स जो हैं उनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक बेटे, अगर आपने इंसेक्ट स्पेसिमेंट्स प्रिजर्व करने हैं तो दिस इंसेक्ट स्पेसिमेंट्स दे आर जनरली प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस। तो इंसेक्ट बॉक्सेस वुडन बॉक्सेस होते हैं, उसमें पर्टिकुलर इंसेक्ट जो है उसके बॉडी पार्ट्स को हम स्मॉल ऑयल पिन्स के साथ माउंट कर देते हैं, और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। जैसे देखिए इस पिक्चर के अंदर आपको नजर आ रहा है, वी हैव माउंट सो मेनी इंसेक्ट्स एंड वी हैव आल्सो attached some of the chits which are containing the information related with that particular insect. Okay बेटे, लार्जर एनिमल्स हैं जैसे बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, तो उनको आप लाके तो म्यूजियम में नहीं रख सकते ना,
तो उस केस में हम क्या करते हैं, ग्लास हाउसेस के अंदर हम उनके वुडन स्पेसिमेंट्स जो है उनको रख देते हैं। देखिए यहाँ पे टाइगर का, ठीक है, इसके अलावा ब्लैक डियर जो है उसके स्पेसिमेन हमने रखे हुए हैं। यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रिच के स्पेसिमेंट्स हैं। तो ये सारे स्पेसिमेन इस तरह से अरेंज किए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स जो हैं दे गेट फेमिलियर दैट सो सच एंड टाइप ऑफ एनिमल्स दे आर जनरली फाउंड इन द फॉरेस्ट। ओके बेटे, पुराने टाइम में हम स्नेक्स के भी स्पेसिमेन रखते थे, but nowadays because the snakes they comes under the endangered species, so we are not putting them in these you can say bottles. इसके अलावा देखो स्केलेटन जो होते हैं एनिमल्स के, ठीक है, ह्यूमन स्केलेटन जो है वो भी आपको बायो लैब के अंदर जनरली नजर आ जाता है, तो दे आल्सो कम अंडर द स्पेसिमेन। अगर हम बर्ड्स को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो द स्पेसिमेन व्हिच वी जनरली यूज फॉर बर्ड्स दे आर एक्चुअली नोन एज द स्टफ्ड स्पेसिमेन। ठीक बेटे, व्हाट आर दीज स्टफ्ड स्पेसिमेन? स्टफ्ड स्पेसिमेन क्या होते हैं कि हम क्या करते हैं, वी हैव अ स्पेशल काइंड ऑफ सॉल्यूशन एंड व्हेन वी स्प्रे दैट सॉल्यूशन ऑन द बर्ड स्पीशीज, तो बर्ड्स जो हैं वो जैसे बैठे होते हैं वैसे ही रह जाते हैं। लेटर ऑन व्हाटएवर द डिकम्पोजिंग मटेरियल इज प्रेजेंट इनसाइड द बर्ड बॉडी, उसको रिमूव कर दिया जाता है और उसके बीच में ड्राई ग्रास फिल करके ना बर्ड स्पेसिमेन तैयार किए जाते हैं। तो some of the students, older students, they generally visit when biolab, तो उनको पता है कि मेरे पास ऐसे कई बर्ड स्पेसिमेन हैं, ठीक है, क्रो का, पिजन का, पैरेट का, आई हैव शोन देम सो मेनी टाइम्स। उसके बाद देखो बेटे म्यूजियम्स जो है वो बहुत ही अच्छा मेथड है जिससे हम क्लासरूम के अंदर ही बैठकर जो है सारे के सारे जो स्पीशीज हैं एनिमल्स की, प्लांट्स की, उनको स्टडी कर सकते हैं। It is not forced us to visit those places, okay, because some of the animals may be the dangerous ones, so we cannot come in contact with those, and we are not able to catch these insects. So if insect specimens are there with us, we are able to study their body parts, so it is very much beneficial for educational purpose. Another thing is zoological parks, ठीक है बेटे, in short we call them as zoo, जिसे हम कहते हैं चिड़ियाघर, हम जिसे कहते हैं हिंदी में। तो देखो बेटे जो जूलॉजिकल पार्क्स है बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है चिल्ड्रंस के लिए। when they have their summer vacations or holidays, they generally very much interested to go to this zoo, और वहां पे जाके जो है वो लाइव दे सकते हैं एनिमल्स को। तो these zoological parks जो हैं they are special places where the animals, the wild animals generally, they are kept under protected environment under human supervision, okay. And here also because these animals, all of the activities that are related with these animals, they are generally done by their caretakers, which are humans only, और वो उनकी फूड हैबिट्स जो है, उनके बिहेवियर को ह्यूमंस जो है यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। and those people who are the visitors, they can also see these wild animals because it is not possible for us, okay, to come in contact with these because they can harm us. So we can easily visit these zoological parks and see these wild animals and what are their common behavior in their natural habitats. So it is very easy to observe that. So generally the children, they love to visit such places. So it is not only for the purpose of entertainment, but it is also an educational trip too. So students learn a lot about these animals. तो उसमें बर्ड्स की स्पीशीज, राइनोसेरोसिस के स्पीशीज होती हैं, टाइगर्स होते हैं, लायंस होते हैं, एलिफेंट्स होते हैं, ठीक बेटे। तो जूलॉजिकल पार्क्स जो है एक बहुत ही अच्छा मेथड है इंडेंजर्ड स्पीशीज जो है उनको भी प्रोटेक्ट करने का। तो यू हैव हर्ड अबाउट सो मेनी पॉपुलर जूस और जूलॉजिकल पार्क्स इन योर कंट्री, ठीक बेटे। तो ये एक तरह का एक एक्सपीरियंस है और इससे हमें काफी ज्यादा नॉलेज मिलती है क्लासिफिकेशन के अंदर। वी कैन इजीली आइडेंटिफाई the features of these animals, characteristic features. We are able to do the classification of these animals. तो जो भी एनिमल्स आप नहीं देख पाते हैं उनको यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। स्विमिंग पूल्स भी हो सकते हैं जू के अंदर जिसमें आप एक्वेटिक एनिमल्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके बेटे, तो लास्ट इज द टैक्सोनॉमिकल की। So what is this taxonomical key? So it is a kind of a, you can say, taxonomical aid, and it is generally used for the classification of plants and animals. ठीक है बेटे, how we classify plants and animals by using this taxonomical key. So here we identify the plants and animal species on the basis of some general observations that are related with some of the similar characters.
that are unique to these plant or animal species or the dissimilarities that are related with them. अब मैं हिंदी में बता रही हूँ कि टैक्सोनॉमिकल की एक ऐसा टैक्सोनॉमिकल एड है जिसमें हम प्लांट और एनिमल स्पीशीज को क्लासिफाई कर सकते हैं कुछ जनरल एक्सेप्शंस के बेसिस पर, और उसमें हम क्या करते हैं कि उन प्लांट और एनिमल स्पीशीज की कुछ हम सिमिलैरिटीज को कंसीडर करते हैं और कुछ डिसिमिलैरिटीज को कंसीडर करते हैं, और उसके बेसिस पे हम एक जनरल कंक्लूजन अपने माइंड में लेकर आते हैं। ठीक बेटे, तो कहते हैं कि कीज जो होती हैं उसमें हम क्या करते हैं, कुछ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स जो हैं उनको लेते हैं, उसमें से कुछ करेक्टर्स जो हैं वो उन स्पीशीज के सिमिलर करेक्टर हो सकते हैं और कुछ डिसिमिलर करेक्टर हो सकते हैं। तो ये जो क्लस्टर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स हम कंसीडर करते हैं, इट इज नोन एज कपलेट. So we have to represent the choice made between the two opposite option. ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि if we are talking about some of the animals which belong to phylum Chordata, so the characteristic feature that are found in these members of phylum Chordata, number 1 presence of notochord and number 2 is presence of dorsal hollow nerve cord. ठीक है, हम कहते हैं कि जिन एनिमल्स के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, जिन एनिमल्स के अंदर डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, वो एनिमल्स जो हैं वो कॉर्डेट्स हैं। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि कुछ स्पीशीज जो हैं हम कॉर्डेट्स नहीं मानते, तो हम कहते हैं कि ये स्पीशीज कॉर्डेट इसलिए नहीं है क्योंकि इनके अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है और डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड भी एब्सेंट है। ठीक बेटे, तो हमने दो ग्रुप बना लिए, एक में हमने कुछ स्पीशीज के अंदर एक सिमिलर करेक्टर पता लगाया कि अगर ये दोनों सिमिलर करेक्टर इस स्पीशीज में है, इन सारे स्पीशीज में है, तो इसका मतलब ये कॉर्डेट में आती है। और अगर इनके अंदर जो है ये सारे करेक्टर नहीं है, तो यहाँ पे हमने डिसीजन किसके बेसिस पे लिया है, डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे लिया, तो हम कहते हैं कि भाई ये नॉन कॉर्डेट्स हैं। अब उसके बेसिस पे हमने क्या किया, एक कंक्लूजन अपने माइंड में लेके आगे कि अगर सो एंड सो करेक्टर्स आर प्रेजेंट and these characters may be the dorsal hollow nerve cord is there. ठीक बेटे, and notochord is properly developed, this means these species that comes under the chordates, and if these characters are lacking, this means they comes under the non chordates. तो इस तरह से कहते हैं कि कुछ करेक्टर्स जो है वो फेवर में होते हैं, कुछ उसके ऑपोजिशन में होती हैं, उसके बेसिस पे हम एनिमल्स जो है उनको क्लासिफाई कर देते हैं। तो ये एक जनरल मेथड है जिसको हम टैक्सोनॉमिकल की कहते हैं। ठीक बेटे, तो टैक्सोनॉमिकल की के अंदर जो भी स्टेटमेंट आप यूज करते हो उस स्टेटमेंट को हम लीड कहते हैं। ठीक, तो आई एम गोइंग टू रीड इट फॉर यू दैट इट इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज ऑफ plant and animal species. The key is based on the contrasting characters which are generally in a pair known as couplet, and it represent the choice made between two opposite option. ठीक है, कुछ ऑप्शन फेवर में होंगे, कुछ उसके अपोजिट में होंगे, तो कुछ ऑप्शंस को हम एक्सेप्ट कर लेंगे और दूसरों को हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे कॉर्डेट्स के लिए मैंने दो ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए कि इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, इनमें डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है, इसका मतलब ये सारे स्पीशीज कॉर्डेट। और दूसरी तरफ मैं कहती हूँ कि अगर ये दोनों करेक्टर नहीं है तो इसका मतलब ये सारे स्पीशीज नॉन कॉर्डेट है। तो इसके बेसिस पे मैंने जो है एक एनालिटिकल नेचर रहा मेरा, ठीक है, एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज को क्लासिफाई करने का मैंने एक एनालिसिस किया, उसके बेसिस पे मैंने उनको क्लासिफाई किया है। तो इस मेथड को हम टैक्सोनॉमिकल की बोलते हैं। ओके बेटे, सो टैक्सोनॉमिकल की जो है वो हमेशा जो है कंट्रास्टिंग करेक्टर्स की ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है। We have to accept certain characters and we have to reject the other one. So whatever statement we generally accept in a key, it is known as lead. So separate taxonomical keys they are required for taxonomic categories, जैसे families है, genus है, species है। ठीक बेटे, जैसे मैं birds के species को identify करना चाहती हूँ और मेरे पास कुछ और species हैं जो birds के नहीं है, तो मैं कहूंगी कि भाई ऐसी species जिसके अंदर hollow bones present हैं, ठीक है, लॉन्गर हॉलो बोन्स प्रेजेंट हैं, और जिनके अंदर फैदर्स जो हैं वो डेवलप होके विंग्स बन गए हुए हैं, फोर लिम्स विंग्स बन गए हैं, जिनमें टेल प्रेजेंट है। ठीक है, जो फ्लाई करते हैं वो बर्ड्स हैं, और जिनमें ये सारे फीचर नहीं है इसका मतलब वो बर्ड्स नहीं है। तो की के अंदर हमेशा आप कुछ सिमिलर करेक्टर्स को और कुछ डिसिमिलर करेक्टर्स को लेती हैं, और जो भी आपके पास स्पीशीज होती है ना उनको उनके बेसिस पे आप क्लासिफाई कर देती हैं। जिनमें वो सिमिलर करेक्टर्स हैं उनको एक ग्रुप में रखती हैं, और जिसमें डिसिमिलैरिटीज है उनको अलग ग्रुप में रखती हैं, और इसके बेसिस पे हम एक कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये कंक्लूजन एनालिटिकल होता है नेचर। ओके बेटे, प्रोसीडिंग फॉर द नेक्स्ट वन। तो देखो यहाँ पे हमारा चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है,
So I have 2 minutes, so I am going to tell you here in brief about some of the other taxonomical aids. And first among these is flora. Okay बेटे, flora, manuals, monogram, catalogs, ये सारे जो हैं these are the other type of taxonomical aids. ठीक है, तो ये भी descriptions जो हैं वो रखते हैं species के बारे में. They also help in correct identification. तो floras क्या होते हैं? What are these floras? These floras, they actually contains the actual account related with the habitat and distribution of the plants. ठीक है, floras के अंदर हमें जानकारी दी गई होती है plant species के habitat के बारे में और उनके distribution के बारे में, अलग अलग areas में कौन कौन सी plant species present है. ठीक है, इसके अलावा जो plant species है ना, particular area के according उनको index में लिखा गया होता है. ठीक है, कौन कौन से एरिया में कौन सी प्लांट स्पीशीज हैं उनको उनके प्रॉपर इंडेक्स के फॉर्म में अरेंज किया जाता है. मैनुअल्स क्या होती हैं? तो कहते हैं कि मैनुअल्स जो है वो बिगर बुक्स होती हैं which contains the useful information about the identification of the names of the species, which are the scientific names, and where these species are found. कहाँ पे ये species मिलती हैं, उनके टेक्निकल नेम्स के बारे में जानकारी दी होती है मैनुअल्स में. ठीक है बेटे, मोनोग्राफ क्या होते हैं? मोनोग्राफ जो है बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं. ठीक है, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर टेक्सॉन के बारे में एंटायर इंफॉर्मेशन दी गई होती है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उसकी लोकेशन के बारे में, उसके हैबिटेट के बारे में, उस पर्टिकुलर टेक्सॉन के फीचर्स के बारे में, कोई स्पेशल फीचर अगर उससे रिलेटेड है उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसकी एवोल्यूशन के बारे में. एवरीथिंग अबाउट द टेक्सॉन इज गिवन इन दिस बिगर बुक्स व्हिच आर नोन एज द मोनोग्राफ्स. ओके स्टूडेंट, तो दिस कंप्लीट आवर चैप्टर टुडे. अब हमारा ये चैप्टर जो है यहाँ कंप्लीट हो गया है. तो व्हेन वी स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर, बिफोर दिस वी विल डिस्कस द एनसीईआरटी क्वेश्चंस. तो आपको ऑन द वेरी बिगनिंग ऑफ द चैप्टर आई हैव टोल्ड यू